Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will be talking about Newton's first law of motion. This topic is meant for class 11 students of CBSE, ISC and different state boards. This topic will also be found useful for various competitive exams like NEET and JEE Mains. The complete note of the topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. All the objects that we see around are either at rest or are moving with certain velocity, either in a straight line or in a plane. So far, we have not looked into the cause of its motion. कोई वस्तु स्थिर क्यों है, कोई गतिमान क्यों है? This was explained by Newton in terms of force. What is the nature of force and how it affects the motion of a body was described by Newton in his famous three laws, which are popularly known as Newton's laws of motion or simply the laws of motion. These laws describe the motion of all objects of dimension greater than 10 to the power minus 6 meter. We now see Newton's first law of motion. It states that every body continues in a state of rest or of uniform motion along a straight line unless an external force acts on it. प्रत्येक वस्तु या तो विराम की अवस्था में है या समरूप गति से एक सरल रेखा में चल रही है जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगे. This first law can be divided into two parts. The first part gives the definition of inertia and the second that of the force. So now let us see what do we mean by inertia. The tendency of a body to maintain its state of rest or of uniform motion along a straight line in the absence of an external force is called inertia. दूसरे शब्दों में हम कहें तो किसी बाहरी बल के अभाव में, किसी बाहरी बल के नहीं होने पर इनर्शिया किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था को बदलने में असमर्थ है. अर्थात यदि वस्तु पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर रहेगी और यदि चल रही है तो सरल रेखा में चलती रहेगी. न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम इसलिए कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. लार्जर द मास, मोर द टाइम बॉडी टेक्स टू चेंज इट्स वेलोसिटी बाय ए सर्टेन अमाउंट. जितना वस्तु की मात्रा ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा समय लगेगा वस्तु को अपनी अवस्था को बदलने में. ओके, इसलिए मास ऑफ ए बॉडी is taken as a measure of inertia. Now, inertia is of three kinds. Inertia तीन तरह के हैं. First is the inertia of rest. Second is inertia of motion. And third is inertia of direction. जैसा कि हमने अभी बताया, किसी एक्सटर्नल फोर्स के अनुपस्थिति में कोई वस्तु अपने विराम की अवस्था को बदलने में असमर्थ है और इसे ही हम उसका inertia of rest कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, when a car suddenly starts moving forward in a straight line, a person sitting in the car leans backward. कोई कार यदि सडनली आगे की ओर बढ़ना शुरू कर दे तो उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है. This is so because the lower portion of the person's body in contact with the car starts moving with the car while his upper portion tends to maintain its state of rest. ऐसा इसलिए है कि व्यक्ति के शरीर का लोअर पोर्शन जो कार के कांटेक्ट में है, कार के चलने के साथ ही चलना शुरू कर देता है, जबकि उसके शरीर का ऊपर का पोर्शन चाहता है अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को बनाए रखना. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन द पर्सन लीन्स बैकवर्ड. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. उसी तरह किसी एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में कोई वस्तु जो गतिमान है अपने गति की अवस्था को बदलने में असमर्थ है और इसे ही हम उसका इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, व्हेन ए कार विच इज मूविंग फॉरवर्ड सडनली स्टॉप्स, ए पर्सन सिटिंग इन द कार लीन्स फॉरवर्ड.
कोई कार जो आगे की ओर जा रही है ऑल ऑफ अ सडन रुक जाए तो उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है बिकॉज द लोअर पोर्शन ऑफ द पर्सन्स बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द कार कम्स टू रेस्ट विद द कार while the upper portion tends to maintain its state of motion। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यक्ति के शरीर का लोअर पोर्शन जो कार के संपर्क में है कार के साथ ही रेस्ट में आ जाता है, जबकि उसका शरीर का ऊपर का हिस्सा चाहता है अपने स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखना। एंड दिस इज द रीजन व्हाई द पर्सन लीन्स फॉरवर्ड। और यही कारण है कि आदमी आगे की ओर झुक जाता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, फाइनली inertia of direction। The inertia of direction of a body is its inability to change its direction of motion by itself। किसी गतिमान वस्तु का अपने गति की दिशा को किसी फोर्स की अनुपस्थिति में नहीं बदल सकने की जो असमर्थता है उसकी, उसे हम उसकी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, सपोज ए स्टोन इज टाइड टू ए स्ट्रिंग एंड दी इट इज रोटेटेड इन ए सर्कल, इट इज व्हर्ल्ड इन ए सर्कल। ओके, यदि किसी कारण से रस्सी टूट जाए तो स्टोन फ्लाइज ऑफ along दी टेंजेंट, ये टेंजेंट पे चला जाता है स्टोन। ठीक है, दिस इज बिकॉज द स्टोन वॉज मूविंग इन ए सर्कल बिकॉज ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। एज सुन एज द स्ट्रिंग ब्रेक्स द टेंशन vanishes and the stone takes a straight line path in accordance with न्यूटन फर्स्ट लॉ। ये पत्थर जो घूम रहा है सर्कल में, दिस इज बिकॉज ऑफ टेंशन in the string। The string provides the necessary force. The tension in the string provides the necessary force for it to move in a circular path। जैसे रस्सी टूट गई तो रस्सी का टेंशन खत्म हो गया और पत्थर पर लगने वाला जो फोर्स है वो खत्म हो गया। And because of this, the stone goes along the tangent in accordance with Newton's first law। Clear? आइए अब हम देखते हैं what is a force and what is a reference frame। Force is either a push or a pull। ओके, ये वो बाहरी कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को बदलता है या बदलने का प्रयास करता है। इट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज ए बॉडीज स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। हम क्यों बोलते हैं कि चेंज करता है या करने की चेष्टा करता है? इसलिए दैट सपोज दैट यू हैव अ बॉल, ओके, एंड यू गिव इट ए किक, बॉल विल मूव फॉरवर्ड, इजंट इट? बॉल मूव कर जाएगा। यदि कोई वॉल है एंड यू आर पुशिंग द वॉल, वॉल विल नॉट मूव। क्लियर? सो इट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो फोर्स वो बाहरी कारण है जो वस्तु पर लगकर उसके अवस्था को बदलता है या बदलने का चेष्टा करता है। If be an external force acting on a body and A be its acceleration, then the first law is equivalent to saying that A equal to 0 if and only if F is equal to 0। यदि वस्तु पर लगने वाला फोर्स F है और उसमें उत्पन्न एक्सलेरेशन A है, तो यदि F 0 होगा उसी समय A का मान 0 होगा। जब तक कोई फोर्स वस्तु पर नहीं लगे वस्तु में कोई एक्सलेरेशन उत्पन्न नहीं हो सकता है। दैट इज टू से बॉडी विल रिमेन आइदर एट रेस्ट और मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी। यहाँ ध्यान देने की बात है, वस्तु में इंटरनल फोर्स के कारण कोई भी गति में परिवर्तन नहीं होता है या उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। जो भी चेंज होगा वस्तु की स्थिति में वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही हो सकता है। ओके, अब देखिए रेस्ट और मोशन जो हैं सो रिलेटिव कॉन्सेप्ट हैं एंड दे हैव ए मीनिंग ओनली इन ए स्पेसिफाइड रेफरेंस फ्रेम। ए बॉडी व्हिच इज एट रेस्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम वन फ्रेम मे अपीयर टू बी एक्सेलरेटेड व्हेन व्यूड फ्रॉम अनदर फ्रेम। मान लीजिए एक कार में दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है,
2 persons are sitting in a car. The car is moving. For a person standing outside, इसको इस व्यक्ति को लगेगा कि चूंकि कार जा रही है आगे, तो ये दोनों व्यक्ति आगे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति कार में बैठे हुए हैं 2 लोग, इसको लगेगा ये व्यक्ति रेस्ट में है इसकी तुलना में, क्योंकि दोनों हमेशा साथ साथ हैं। इवन तो द कार इज मूविंग, इसको लगेगा कि ये साथ में है, इसमें गति नहीं हो रही है, और इसको लगेगा कि इस व्यक्ति में गति नहीं हो रही है, क्योंकि दोनों हमेशा ही साथ साथ हैं जबकि कार चल रही है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कंसिडर कीजिए वी हैव ए लिफ्ट, वी हैव एन एलिवेटर, ठीक है। एलिवेटर में एक आदमी ए है और बाहर एक आदमी रोड पर है बी। किसी कारण से मान लीजिए एलिवेटर का जो ये केबल है ये टूट गया, तो क्या होगा? केबल टूट गया तो एलिवेटर विल स्टार्ट फॉलिंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो दी एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर, ओके, ठीक। और चूंकि ये व्यक्ति जो है ये एलिवेटर के अंदर है, सो दिस मैन इज ऑल्सो मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन जी, ठीक है। मान लीजिए ठीक उसी समय जब केबल टूटा एलिवेटर का, उस समय एक बोल्ट जो एलिवेटर में था वो भी खुल गया, तो क्या होगा? ये बोल्ट भी गिर रहा है नीचे की ओर विथ द सेम एक्सेलरेशन जी, आदमी भी जा रहा है नीचे की ओर विथ एक्सेलरेशन जी। सो दोनों बोल्ट और मैन दोनों हर जगह एक लेवल में होंगे, isn't it? ये दोनों जो हैं हमेशा एक साथ होंगे, ये व्यक्ति और ये बोल्ट, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन बिल्कुल एक है, ठीक है ना। ये यहाँ पर है तो ये भी यहाँ पर है, ये आदमी यहाँ चलाया तो बोल्ट भी यहाँ चलाया, बिकॉज बोथ हैव द सेम एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एंड बोथ हैव स्टार्टेड मूविंग डाउनवर्ड एट द सेम टाइम। तो व्यक्ति ये जो है जो एलिवेटर के अंदर है उसे लगेगा कि बोल्ट स्थिर है, इसमें कोई गति नहीं हो रही है, तो ए के लिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं लग रहा है, ठीक है। जो बी व्यक्ति खड़ा है बाहर उसे लगेगा कि बोल्ट नीचे की ओर गिर रहा है और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड है, ठीक है। सो टू द पर्सन ए द बोल्ट विल अपीयर टू बी रेस्ट even though a force due to gravitational pull of the earth acts on it. Newton's first law, therefore, does not appear to hold good in the reference frame fixed to the cabin. On the other hand, the person B, standing on the ground, finds that as the gravitational pull acts on the bolt moves in the vertically downward direction with an acceleration g. The person B therefore declares the first law to be valid in the reference frame fixed to the earth. It thus appears that Newton's first law does not hold in all frames of reference. स्थिति एक ही है, बोल्ट नीचे की ओर गिर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति एलिवेटर में है उसे लग रहा है कि बोल्ट नहीं गिर रहा है, और जो व्यक्ति बाहर है एलिवेटर बाहर है बी व्यक्ति, उसे लग रहा है कि बोल्ट नीचे की ओर गिर रहा है बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ द अर्थ। इसलिए एक ही स्थिति को दो व्यक्ति दो तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है so does not hold good in all frames of reference. ऐसे फ्रेम्स जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, वैलिड हैं, उसे हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। ये ऐसे फ्रेम हैं जो या तो रेस्ट में हैं या यूनिफॉर्म मोशन में हैं अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हम अपने लिए ये मानते हैं कि अर्थ हमारा जो है वो इनर्शियल फ्रेम है। ऐसे सारे रेफरेंस फ्रेम जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, वैलिड हैं, उसे हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम ऐसे फ्रेम हैं जो या तो रेस्ट में हैं या समरूप गति से एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। अपने पर्पस के लिए हम मानते हैं कि अर्थ हमारा एक इनर्शियल फ्रेम है, इवन दो दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली इनर्शियल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अर्थ अपने दूरी पर भी घूमती है और साथ ही साथ ये सन के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, एंड देयरफॉर इट हैज सम एक्सेलरेशन, बट दिस इज ए वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन टू एज्यूम दैट आवर अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम। ऐसे सारे फ्रेम्स जो किसी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में
यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं वे भी इनर्शियल फ्रेम कहे जाते हैं। और ऐसे फ्रेम्स जो एक्सलेटेड हैं या डिसलेटेड हैं दे आर नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, क्योंकि न्यूटन लॉ ऐसे फ्रेम में वैलिड नहीं है। ओके, नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल। एन एस्ट्रोनॉट releases a small ball out of his small spaceship, which is uniformly accelerating in the interstellar space at the rate of 100 meters per second square. Assuming that there are no nearby stars to exert gravitational force on it, find the acceleration of the ball the instant it is released from the spaceship. सवाल कह रहा है कि एक एस्ट्रोनॉट है जो अपनी स्मॉल स्पेसशिप में जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इंटरस्टेलर स्पेस में कोई दूसरे स्टार्स भी नहीं हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करें दूसरे पर। उस एस्ट्रोनॉट ने एक बॉल को रिलीज कर दिया स्पेसशिप से। तो कहा जा रहा है टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द इंस्टेंट इट इज रिलीज फ्रॉम द स्पेसशिप। अब देखिए, as there are no nearby stars to exert gravitational force on the ball, the gravitational force of the small spaceship on the ball is also negligible. The net force on the ball is zero. बॉल पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है बॉल को बाहर रिलीज करने के बाद, क्योंकि वहाँ कोई दूसरे स्टार्स नहीं हैं जो ग्रेविटेशन पुल लगा सकें बॉल पर, और स्पेसशिप का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी बहुत कम है। इसलिए देयर इज नो नेट फोर्स ऑन द बॉल आफ्टर रिलीज्ड फ्रॉम द स्पेसशिप। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज जीरो बिकॉज देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए। ए ब्लॉक ऑफ मास m equal to 5 kilogram is moving with a constant velocity of 5 meter per second. What is the force acting on the block? एक ब्लॉक है 5 किलोग्राम का जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। इस पर लगने वाले फोर्स का मान बताइए। सोल्यूशन क्या होगा? ब्लॉक मूव कर रहा है विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, देयर इज नो एक्सेलरेशन एंड देयरफॉर net force on the block will be zero because we have force into mass into acceleration. It has no acceleration even though it has mass, so product of mass and acceleration will be zero, so there is no force acting on the block. So this is all about Newton's first law. Okay, I assume you like this presentation. यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। So thank you for watching. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.